So today we are going to start our 8th chapter, that is anatomy, physiology and kinesiology. So first of all, let us know the meaning of anatomy. Anybody heard about it? What is anatomy? Okay. So write down anatomy is a study of, write down, anatomy is the scientific study of body structure and its body parts. It also studies the relation between different body parts. So what do you mean by structure? Structure means shape, size, location of the body organs. Okay, this is anatomy. Once again, I'm repeating this definition. Anatomy is the scientific study of structure of body and relation of body, different body parts. Right? Any doubt? Sir, structure of body and And relation of the body parts. okay. And relation among the various body parts. Now, physiology. What is physiology? Physiology studies the function of various body organs and systems. Physiology is the study of various body organs and systems. So anatomy is anatomy means what is the body is, and physiology what a body does. Okay, anatomy means what a body is, and physiology is what a body does. That is clear. Whenever you think about anatomy, you think about structure. Okay, that is shape, size, weight, vertical location. Okay, and when you think about physiology, you must think about the function of the body organs. Clear, right? Okay. Yes, sir. Third thing is kinesiology. In simple word, we can say the kinesiology is the study of movements. The factors behind the movements, the mechanism behind the movements is kinesiology. So in simple word, you can say kinesiology is the study of movements. Sir, what is the name? K-I-N-E, S-I-O, S-I-O-L-O-G-Y, kinesiology. So it is a scientific study of human or non-human body. Okay. Now let us come to the anatomy. In anatomy, we will discuss the skeletal system. Okay, everybody's known about it. What is skeletal system? Sir, it is a bone structure of our body. Bone structure of our body. It is the Structure of our bones. So our whole structure is depend upon our skeletal system. Okay. So what are the functions of skeletal system? We know they are without skeletal system we cannot move, because skeletal system provides us movement. Second thing is skeletal system provides shape to our body. Okay. It is very essential for movements. Third thing is it acts as a lever. Okay. It is also very important for the formation of blood in our body. Okay. Storage of calcium and calcium phosphate. Okay. So these are some functions of skeletal system. Now
let us see the what is actual in actual skeletal system is. Okay, so here I am sharing this picture. Okay, so there are two types of क्या बोलते हैं skeletal system, axial and appendicular. When you will ठीक है think about skull, rib cage and pelvis area, so that is axial skeletal system. And we are talking about appendicular. That means you have to delete this portion. Which portion? Skeleton, ribs and pelvis area. That means only the hands and legs part include the appendicular system. Okay, नहीं आया समझ में? जब भी आप एक्सियल का वो करोगे, एक्सियल होगे, तो उसमें से आप क्या क्या देखोगे? स्कल पार्ट देखोगे, रिब्स का पार्ट देखोगे और ये पेल्विस का पार्ट देखोगे. ओके, ये तीन पार्ट किसमें आएंगे? एक्सियल सिस्टम में आएंगे. और अपेंडिकुलर में क्या क्या आएगा? अपेंडिकुलर में आपका ये क्लेविकल मतलब आपका शोल्डर ब्लेड, आपके हाथ पांव, ये सब किसमें आएंगे? अपेंडिकुलर में आएंगे. ओके, तो लेट अस नो द बोथ टाइप्स. सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर दो. कौन सा बेटा? एक्सियल. In Yes, sir, axial, yes. we will include the skull part, rib cage part, and the pelvis part. ये तीन पार्ट आएंगे किसमें? in axial system. ठीक है, skeletal system. Appendicular में क्या आएगा? Appendicular में will include the shoulder blade, the humerus. Humerus means hand and legs. Okay. ओके सर. ओके, क्या पेल्विस पार्ट ये पेंडिकुलर में? आपका पेल्विस पार्ट एक्सियल में नहीं आएगा, पेंडिकुलर में आएगा. ओके, सो जो पेल्विस का पार्ट है इट इज आल्सो इंक्लूडिंग पेंडिकुलर. ठीक है, सिस्टम. ओके, नाउ एज वी नो वी आर हैविंग 206 बोन्स इन आवर बॉडी. ठीक है, सबको पता है ये बात. नाउ लेट अस गो टू द स्कल सिस्टम. स्कल में सबसे जो फ्लैट सरफेस है इट इज कॉल्ड क्रेनियम. क्या कहते हैं इसे? CRANIUM, क्रेनियम. याद रहेगा. तो क्रेनियम इज ए फ्लैट सरफेस, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैट बोन. क्रेनियम इज ए फ्लैट बोन. उसके बाद आती है हमारी जिगोमेटिक बोन, जो कि हमारी फेशियल बोन होती है. फेशियल बोन में जो हमारा जो ये जॉ का पार्ट होता है इट इज कॉल्ड मैंडाबिल. क्या कहते हैं इसे? मैंडाबिल कहते हैं. ओके, याद रहेगा मैंडाबिल. मैंडाबिल किसे कहते हैं? आवर जॉ पार्ट. ओके, नाउ उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारा नेक का पार्ट आता है. नेक के पार्ट में के नीचे क्या आता है? शोल्डर ब्लेड. इट इज आल्सो कॉल्ड क्लेविकल. क्या कहते हैं शोल्डर ब्लेड को? जो हमारी हड्डी है, ठीक है ना, साइड की, इट इज कॉल्ड क्लेविकल. तो आपको ये सब बात ध्यान में आनी चाहिए, याद रखने के लिए. ठीक है ना. नाउ लेट्स कम डाउन. तो सबसे जो हमारा जो आर्म का पार्ट होता है, जो हमारा बाइसेप का पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ह्यूमरस. इट इज कॉल्ड ह्यूमरस. ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड ह्यूमरस. इसके नीचे आ जाओ. नीचे देयर आर टू बोन्स. ठीक है, अल्ना एंड रेडियस. जो अल्ना है थोड़ा थिक बोन होती है और रेडियस थोड़ी थिन बोन होती है. तो देयर आर टू बोन्स, अल्ना एंड रेडियस इन अवर एल्बो. ओके, नाउ उसके नीचे जो रिस्ट पार्ट होता है, रिस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्पल. क्या कहते हैं भाई? कार्पल. कार्पल जब भी आता है, रिस्ट बोन जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल बोन. तो ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट बोन्स होती है. जो भी शॉर्ट बोन्स होंगी वो क्या होंगी? ट्यूब साइज में होती है. दिस शॉर्ट बोन्स आर इन ट्यूब साइज. ठीक है,
तो जैसे हमारे एंकल है और हमारा रिस्ट है, यहाँ पर कौन सी बोन्स होती है? ट्यूबर शॉर्ट बोन्स। ओके, ये हमारा क्या है? जो हमारा रिस्ट है, दिस इज रिस्ट इज कार्पल बोन्स। रिस्ट के नीचे जो ये चीजें, दीज आर मेटाकार्पल्स। दिख रहा है आप लोगों को? दीज आर मेटाकार्पल्स। ओके, याद रहेगा। मेटाकार्पल के नीचे क्या आता है? फ्लेंजिस आता है, फ्लेंजिस। मेटाकार्पल के नीचे क्या आता है? जो हमारी उंगलियां है, दीज आर फ्लेंजिस या फ्लेंजिस। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया आप? कहाँ तक? नाउ लेट्स गो टू द चेस्ट पार्ट। जो कैविटी है हमारे चेस्ट में, जो बीच में द सेंटर बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। दिस इज आल्सो ए फ्लैट बोन। सेंटर, जो सेंटर बोन है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? इट इज सिचुएटेड द सेंटर बिटवीन द बोथ कैविटीज। कैविटीज किसकी? रिब केज की। ठीक है, तो एक स्टर्नम बोन होती है हमारे पास। स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे द और हार्ट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। ओके, तो फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन का काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लैट बोन? टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हमारा जो हार्ट है, और हार्ट इज सिचुएटेड बिहाइंड द फ्लैट बोन, दैट मींस स्टर्नम। तो इट प्रोटेक्ट our heart from the strike or any stroke. Okay, now let's go to rib cage. As we know, there are 24 rib cage, 24 ribs in our rib cage. You get 12 this side and 12 right side, so 12 pairs of rib cage. उसमें से जो 7 होती है, 7 rib cage are 2 rib cage. जो 7 rib cage होती है, these are 2 rib cage. क्योंकि why they're true? Because they are attached to the sternum. They are attached to the sternum. उसके बाद जो 5 जो होती है, जो 5 होती है, they are false rib cage because they are not directly attached to the sternum. Okay. उन पांचों में से out of 5 there are 2 pairs of floating ribs. Floating ribs means which are not at all attached to the sternum or whatever. Okay, now let's go to back side. यहाँ तक आ गए हम लोग. Now this is our pelvis. ठीक है, pelvis में क्या होता है? There is a small you can socket on which our thigh bone का जो end होता है, that is round shape. So it will fit in the pelvis. ठीक है, and attached to the pelvis. Now the thigh bone is also called femur. Femur is the largest bone in our body, or you can say strongest bone in our body. Okay, femur. Below the femur there is a kneecap, or you can say knee ball, which is called patella. P-A-T-E-L-L-A. ठीक है, पटेला होता है घुटनों के बीच में, वो हड्डियों के बीच में. Patella is attached to tendons and ligaments, which is provide function, movement. ठीक है, क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? आदत से ज्यादा. तो पटेला क्या है? जो नी के, जो हमारा जो नी का बॉल होता है, which is attached to the tendons and ligaments and provide function to the body. Okay, उसके नीचे क्या आता है? 2 बोन्स आती है. थाई के नीचे 2 बोन्स होती है, that is tibia and fibula. Tibia is the big bone and fibula is a thin bone. ठीक है, उसके नीचे जैसे हमारे हाथ में होता है, वैसे क्या होता है? tarsal. Tarsal means ankle part where the toes, heel and the tibia and fibula join each other. That is called tarsal. जैसे ये कार्पल्स थे, वैसे एंकल में क्या होते हैं? टार्सल्स होते हैं. टार्सल्स के नीचे मेटाटार्सल्स. ओके, उसके बाद फ्लेंजेस. क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको?
क्लियर है? Yes, sir. Yes, Don't you? Okay. So you must Yes, know, sir. you must know the name of all the bones. ठीक है, थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर पार्ट में। तो ये हमारा स्कल है, स्कल दिख रहा है आपको। स्कल को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम, क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के नीचे क्या होता है? बिलो क्रेनियम देयर इज ए जिगोमेटिक बोन्स, यू आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड फेशियल बोन्स। उसके बाद आता है हमारा मैंडिबल, मैंडिबल मींस जॉ। फिर आता है हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा। सर्वाइकल आप जानते हो सारे बच्चे, जो हमारी जो पीछे वर्टेबल कॉलम होता है, ठीक है। वी हैव सीन आवर स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल बोन व्हिच इज कॉल्ड वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स, ठीक है। 26 बोन होती है जो कि यहाँ नेक से लेके कहाँ तक होती है? कोकीजिक्स तक। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है which give क्या बोलते सपोर्ट टू आवर होल स्केलेटन सिस्टम। अगर पीछे का वर्टेब्रा नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, तो क्या होगा? पूरी बॉडी डर जाएगी। तो दिस वर्टेब्रा इज द बेस आवर होल स्केलेटन सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे ऊपर क्या है? सर्वाइकल वर्टेब्रा है, जो कि कितनी होती है? 7 होती है। हम बोलते हैं ना C1 C2 C3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है? देयर आर 7 वर्टेब्रा, ठीक है। तो जो 7 वर्टेब्रा होती है, इसमें जो C1 C2 होती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों होती है? बिकॉज C1 जो वर्टेब्रा होती है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द, इफ यू से यस, अगर हम कहते हैं कि हाँ भाई हिमांशु खाना खाएगा, तो हिमांशु क्या कहेगा? हिमांशु क्या कहेगा? यस सर आई विल ईट। तो C1 हेल्प दिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? ऐसे वाला, ठीक है। एंड C2, तो C1 इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? नहीं, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इट इज कॉल्ड एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। C1 मतलब एटलस और C2 मतलब एक्सिस। एक्सिस से काम आता है, एक्सिस प्रोवाइड द दिस मूवमेंट। कौन सा? नो, नहीं सर मैं नहीं कहूँगा, ठीक है भाई। तो C1 C2 आर द एक्सिस एंड एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन, इट इज asked in the board examination also, ठीक है। ओके, तो तो हमारा जो our skeletal system consists of skull, trunk, upper limb to lower। अब आता है पीछे का शोल्डर, ठीक है। हमारे पीछे क्या है? देयर आर टू शोल्डर्स, फ्लैट शोल्डर्स, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला, ठीक है। दीज आर आल्सो फ्लैट बोन्स, ठीक है भाई। अब नीचे आ जाओ, थॉर्टिक, ठीक है। थॉर्सिक वर्टेब्रा, थॉर्ट से वर्टेब्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्कैपुला के नीचे स्टार्ट होती है और यहाँ तक होती है, ठीक है। ये कितनी होती है? These are 12 in numbers, ठीक है। इसको T1 T2 कभी टोटल मिलाओगे तो they will call it T1 T2 T3 T12, ओके। उसके बाद आता है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वेस्ट रीजन, ठीक है। तो लंबर में 5 होती है, देन पेल्विस, सैक्रम में 5, कॉक्सिजिक्स, हमारी जो क्या बोलते हैं टेल बोन होती है, वहाँ पर भी कॉक्सिजिक्स, ओके। देन नीचे आपको पता ही है क्या है? नीचे क्या है? फीमर है, फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला का क्या? अच्छा, एडी की हड्डी को क्या कहते हैं? कैल्केनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्केनियस। तो फिर वही टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लैंजेस। क्लियर है यहाँ तक? Is it clear? Should I repeat? Is it clear? Clear, sir. You must सर एक बार remember रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? Which one, Manju? सर वो जो आप नेक्स्ट का बता रहे थे। क्या कह रहा था? सर वो मूवमेंट का नहीं बता रहे थे आप नेक्स्ट C1 अच्छा, C2। okay, okay. So we are having two C1 C2
तो C1 प्रोवाइड्स यस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ पर है C1, ठीक है ना। एक मिनट में बताता हूँ। Hold on. ठीक है, यहाँ पर होता है बस, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। Here we are having C1 and here we are having C2. Yes, sir. Okay. तो C1 provide yes movement and C2 provide no movement. Okay. ओके सर। इसके नीचे अपने पास शोल्डर ब्लेड आते हैं। शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? स्कैपुला। क्या कहते हैं भाई? स्कैपुला, which is also a flat bone. Then we are having rib cage. Rib cage means irregular bones, ठीक है। rib cage में कितने rib cage होती है हमारे पास? How many rib cage we are having? 24. 24, okay, 12 pairs. सर्वाइकल में कितनी वर्टेब्रा होती है? सर्कल वर्टेब्रा में Sir, please repeat. how many bones are congested in cervical vertebra? सर्वाइकल ही होता है ना। अरे मैंने कहा था ना 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है। तो our vertebra column is divided into 5 parts. पहला क्या है? C1 से लेके C7 तक, ओके। उसके बाद आता है थॉर्सिक वर्टेब्रा। थॉर्सिक वर्टेब्रा कितनी होती है? T1 से लेके T12 तक, ओके। क्या हुआ? तो 12, 12 Okay, sir. 12 and 7 कितने हो गए? 12 और 7 कितने हो गए? Sir, 19। sir, 19 हो गए ना। these together make backbone. रिपीट रिपीट करो। रिपीट करो बेटा। हाँ रिपीट। हाँ वैभव क्या करते हैं बेटा? रिपीट करो। Sir, these together make backbone. हाँ ये हमारी बैकबोन है। इट इज आवर बैकबोन। बैकबोन को वर्टेबल कॉलम भी कहते हैं, बैकबोन को स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। तो There are 19 different bone. total we are having 26 vertebra, 26 bones in our vertebra, ठीक है। vertebra numbers. Okay, sir. ओके, तो उसके बाद है थॉर्सिक वर्टेब्रा। थॉर्सिक में देयर आर 12 वर्टेब्रा। उसके बाद है लंबर वर्टेब्रा। लंबर में होती है 5, ठीक है। तो गिनो कितने हुए? पहले C1 से लेके C7, 7 प्लस 12 कितनी हो गई? 19, 19 प्लस 5 कितनी हो गई? Sir, what? 24, ठीक है। तो टोटल वी आर हैविंग 26 vertebra, okay, and these are called irregular bones. Irregular bones जो कहते हैं because they are having no shape and size, you can say complex shape and size, okay. अब ये आ गया आपका pelvis. Pelvis is also a flat bone. Patella, patella क्या है? Because it provides it is round in shape, that is why it is called sesamoid bone. अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके नीचे आता है tibial fibula,
tarsal, calcaneus, tarsals, metatarsals and phalanges. ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? और डोंट वरी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आई विल टेल यू अगेन, डोंट वरी, दोबारा पूछो, नो प्रॉब्लम। आगे आपको ये अभी प्रक्षाल are there? It's not here. Okay. काव्या आपको आ गया बेटा? काव्या समझ में आया? काव्या दोबारा बताऊं? Should I repeat? Sure, बताओ। सर एक डाउट है, हाँ बोलो बेटा। जो बैकबोन सर 24 बोन से कंसिस्ट होती है, C7 एंड बस T12 19 हो गई, और बाकी 19 हो गई। बाकी L1, L2, L3, L4, L5 लंबर वर्टेब्रा। लंबर मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, नीचे वाली जो पीठ है वहां पर जो होती है, ठीक है। लोअर बैक। लोअर बैक जो है वहां पे आती है लंबर वर्टेब्रा। लंबर के नीचे सैक्रम एंड कॉकेजिक्स, दीज आर टोटल 26 नंबर्स। ओके ओके सर। Himanshu, it is clear? Is it clear? Himanshu, Yes, sir. okay. So why I'm telling about you these bones? Because now you are having question, what are long bones, short bones, flat bones and irregular bones and sesamoid. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। तो लेट्स गो टू द लॉन्ग बोन्स। तो व्हाट आर लॉन्ग बोन्स? बताएगा भाई लॉन्ग बोन्स क्या होती है? टाइम तुम्हारा भाई। सर विचार हाँ, तो लॉन्ग बोन्स which are having more length and less width. That means long bones which are found in our hands and legs. ठीक है, हाथ और पैर की जो बोन्स है, these are long bones. चाहे वो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस दिख रहा है आपको? ह्यूमरस मतलब बाइसेप बोन, चाहे वो रेडियस है तो उल्ला है, चाहे वो फीमर है, चाहे वो टिबियन फिबुला है। These are long bones, humerus and femur. Okay, it provides movement to our body's nervous system. It provides it acts as a lever of the body. ठीक है, these are तो कौन कौन से बोन? आर्म्स और लेग्स की बोन्स कौन सी है? these are long bones. Now short bones कहाँ होती है? मैंने क्या कहा था? शॉर्ट बोन कौन सी होती है बेटा, जल्दी बताओ। which are short in length। शॉर्ट, अरे वाह बटे आंसर। ठीक है भाई, कहाँ होती है फिर? वेयर वी फाउंड शॉर्ट बोन्स? तो वी कैन फाउंड शॉर्ट बोन्स इन आवर रिस्ट एंड एंकल्स। ठीक है, मैंने क्या कहा था? शॉर्ट बोन्स आर इन क्यूब से, क्यूबॉइड से। ठीक है, ये क्यूब से शेप में होती है। ठीक है, दीज आर शॉर्ट बोन। ये यहाँ पर भी होती है पेल्विस के पास। ठीक है, तो शॉर्ट बोन का काम क्या होता है? व्हाट आर द क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ शॉर्ट बोन? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लॉन्ग बोन्स। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जैसे अगर लॉन्ग बोन हम कोई चीज उठाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिफ्ट समथिंग, तो दीज बोन्स हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड ग्रिप। ओके, सर बैकबोन में जो बोन्स हैं वो भी शॉर्ट बोन ही होगी? नहीं, बोन का क्या है? इनका कोई रेगुलर साइज नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट हैविंग एनी रेगुलर शेप एंड साइज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इररेगुलर बोन्स, बिकॉज़ दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स साइज। ओके, तो इररेगुलर बोन कहाँ पाई जाती है? दीज आर क्या बोलते हैं, हवा ये वर्टेब्रा में पाई जाती है। ठीक है,
ये यहाँ पर आपका पेल्विस में, पेल्विस के पास भी, ठीक है, और ये पीछे सैक्रम, ठीक है, कोकिजिक्स, यहाँ पर ये क्या होता है, दिस बोन्स आर फाउंड, ओके, देखा आप लोगों ने, आई टोल्ड यू बिफोर कि जस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेंबर ऑल दिस, बट माय पॉइंट, ओके, तो Yes, इरेगुलर sir. बोन हो गई आपकी। नाउ फ्लैट बोन्स, व्हाट आर फ्लैट बोन्स? बोन्स ऑफ स्कल, मैं कहा था ना क्रेनियम में, दीज आर फ्लैट बोन्स, ठीक है, स्कैपुला जो पीछे की बोन है, ये पीछे की जो बोन है यहाँ पे देखो, Sir, cranium. क्रेनियम, स्कैपुला, देखिए ये, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर फ्लैट बोन, ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम का भी क्या है ये, दिस इज फ्लैट बोन, स्कैपुला फ्लैट बोन, ओके, आप देख सक रहे हो भैया मेरा बेटा। Yes, sir. Now, what are the function of flat bones? So they provide our vital organs. Okay, they protect our vital organs. For example, brain in the lies in the cranium. Okay, or our heart situated behind the sternum. So it protect our vital organs. Okay. अरे हाँ तो बोल दो दोस्तों, irregular bone हो गया हमारा, ओके, irregular bone हो गया। नाउ Yes, कम sir. टू द लास्ट, sesamoid bone। sesamoid क्या होती है, those which are small and round in shape। कहाँ पर आ गया ये पटेला, पटेला पढ़ाया था ना मैंने, गोल, क्या करते हैं ये, it is attached to the ligaments and tendons, it provide mobility, okay, And kneecap. अगर हाँ kneecap, it is also called kneecap, ठीक है, it provide movement to the legs, elbows में, ठीक है, elbows में, okay, so these are types of bones. I hope you all understand the types of bones and our skeletal system, right? Yes, sir. So see you tomorrow for today and then. See you in next class. Till then, goodbye and take care.